Hello and welcome, my dear friends. This is Pravat Sharma once again with the same chapter we have studied yesterday. Madam rides the bus. So today we will be highlighting the main points. To begin with, the first one, Madam rides the bus as always is about an 8-year-old girl Vali's ride in the bus from her village to the town and back. She is an inquisitive girl and wants to see the outside world. Second, Wally's pastime is to stand at the front doorway of a house and see what is happening in the street outside. Next, he always watches the passengers coming and going to the town and hears the conversation. Fourth, she develops a desire to ride one day in the bus, which becomes great. 5. For a ride, she plans intelligently. She stops spending money on toys and other things. Sixth, she saves every penny for the ride. She gathers all the details of the bus going to the town, at what time, and the fare. The fare is 60 paise for the bus ride. One day she takes the 1 o'clock bus to the town. She enjoys her ride to the maximum. On the way, Wally sees a cow running right in front of the bus. She claps as the cow keeps running despite of the continuous honking of the horn by the bus driver. The bus reaches the town. The conductor tells Wally to have a drink, but she refuses. She keeps sitting in the bus. On the return journey, Wally sees the same cow now lying dead by the roadside. She feels it very bad and is sad at the sight. It spoils her happiness for the ride. Last but one, the bus reaches the village. Wally runs straight to her house. She's a woman talking to her mother who doesn't know Wally's ride in the bus. There is a sort of comic relief in the story created by a fun loving bus conductor. So there are three questions which may arise. First, please go through the word meanings. If you have any, like what did Wally enjoy the most? Yeah, what did Wally do while standing in the bus on the seat? So there are many of such questions. So what was the most fascinating thing of all for Wally? What was the result of Wally seeing the bus daily? How did she react at the people getting down the bus? How did Wally pick up small details of the bus and the ride? And what were those details? So, Wally was 8 years old girl, Wally Mai. She was called Wally for short. Her her favorite time pass was standing at the doorway of a house and seeing things happening outside. The most attractive thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. The day seeing the bus, a tiny wish crept on Wally's mind to ride the bus. Wally started to ask about bus. Whoever had traveled from it. So when she rode the bus, she boarded the bus. It was a new bus. Its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides. So, and the bus on the way
to the town was going along the bank of a canal. Well, he wanted a ticket from the conductor, so she asked for a ticket. The conductor punched a ticket and handed it to her. And when the bus stopped, some new passengers got in, and the conductor got very busy for a time being. Afraid of losing her seat, Wally finally sits down. And what happens during the course of a travel, an elderly woman came and sat beside Wally. Wally found the woman absolutely repulsive. Means she does not like that elderly old woman. She thinks her earrings were early. Sorry. So when you read the lesson, you go through it. Please, please, you will have more interest in it. So all the best. After that, we'll watch a clipping and we'll play that. हेलो उसी चीजों के बारे में बहुत हेलो Hello students, I am Ruchika from English Academy. friends, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the chapter Madam Ride the Bus by Villai Khanna. Now the theme of this story is about an 8-year-old village girl named Wali or Vallai Ammai. ये कहानी एक 8 साल की छोटी लड़की के बारे में है जो एक गांव में रहती है जिसका नाम वाली या फिर वाली अम्माई है. She was very curious to know about things. उसे चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जिज्ञासा है. She had no friends. उसका कोई दोस्त नहीं है to play with जिसके साथ वो खेले. So he passed much of her time standing on the doorway. इसलिए वो ज्यादातर अपना समय दरवाजे पे खड़े होकर व्यतीत करती है. She watched everything in the street. गली में वो हर एक चीज को वॉच करती है. She used to watch the bus. अक्सर वो बस को देखती है. Traveler यात्रियों को देखती है. And her neighbors और अपने पड़ोसियों को. She asked them about their journey. वो उनसे उनकी यात्रा के बारे में पूछती है. फेयर किराए के बारे में पूछती है. एंड टाउन और शहर के बारे में पूछती है. शी वॉज वेरी एक्साइटेड टू हैव अ जर्नी बाय बस. और वे बहुत ज्यादा उत्साहित है कि वह भी जर्नी पे जाए, इस बस के अंदर यात्रा करे. वन डे शी बोर्डेड द बस और एक दिन वह बस में बैठ जाती है. इट वॉज आफ्टरनून. ये दोपहर का समय है. एंड द सीट्स वर सॉफ्ट. जो सीट्स हैं वो काफी सॉफ्ट हैं एंड लग्जरियस और बहुत ज्यादा लग्जरियस है, आरामदायक है. द बस कंडक्टर वॉज अ जॉली मैन. और जो बस का कंडक्टर है वो भी वह एक जॉली पर्सन है, काफी उत्साह करने वाला, हंसी मजाक वाला इंसान है. ही कॉल्ड हर फाइन मैडम. वह उसे फाइन मैडम कहता है. एंड शी वॉच्ड द सराउंडिंग्स, अ स्ट्रीम एंड द पाम ट्री. और वह आसपास की सभी चीजों को देखती है और उन पाम ट्रीज को भी देखती है. ऑन द वे और रास्ते में एन एल्डरली वुमन सेट बिसाइड हर. एक बूढ़ी औरत उसके साथ में आके बैठ जाती है. शी वाज चूइंग बिटल. जो पान चबा रही है. देन अ काउ केम इन. और तभी एक गाय आगे आ जाती है फ्रंट ऑफ द बस के सामने. आफ्टर दिस और इसके बाद शी सॉ अ रेलवे क्रॉसिंग. वह एक रेलवे क्रॉसिंग देखती है. एंड अ बिग मार्केट और एक बड़े से बाजार को. ऑन हर जर्नी और जब वह अपनी इस यात्रा से वापस लौट रही थी, शी सॉ द सेम काउ. उसे वही गाय नजर आती है, लाइंग डेड, जो मरी हुई होती है. एट द वे साइड, एक तरफ रास्ते में. शी बिकम वेरी सैड. वे बहुत उदास हो जाती है. एट लास्ट और आखिर में शी गॉट डाउन द बस. वह बस से उतर जाती है. व्हेन शी रीच हर विलेज, जब वो अपने गांव पहुंचती है. हर मदर कुड नॉट नो अबाउट हर जर्नी. उसकी माँ को भी उसकी यात्रा के बारे में नहीं पता चलता. नाउ द शॉर्ट समरी ऑफ द चैप्टर. अ गर्ल नेम वल्ली अम्माई. एक लड़की जिसका नाम वल्ली अम्माई है. देयर वाज एन 8-year-old गर्ल. एक 8 साल की लड़की है. नेम वल्ली अम्माई, जिसका नाम वाली अम्माई है. इन शॉर्ट शी वाज आल्सो कॉल्ड वाली. और कम शब्दों में उसे हम
वाली कहते हैं। शी वॉज अ क्यूरियस गर्ल, वह बहुत जिज्ञासु लड़की है। टू नो अबाउट थिंग्स, जो हर एक चीज के बारे में जानना चाहती है। शी डिडंट हैव एनी प्लेमेट्स, उसका कोई साथी नहीं है। यूजली शी वुड स्टैंड इन द डोरवे, अक्सर वो दरवाजे पर खड़ी हो जाती है ऑफ हर हाउस, अपने घर के। एंड शी ऑब्जर्व द आउटसाइड थिंग्स, और बाहर की सब चीजों को वो ऑब्जर्व करती है, ध्यान देती है, वेरी केयरफुली, बहुत सावधानी के साथ। वाली's feeling for the bus riding, वाली बस की सवारी करने के लिए उसके मन में भावना उठती है। She watch everything in the street outside, गली के बाहर जो भी होता है वह उसे बड़ी सावधानी से देखती है। A bus ran from the village, और उनके गांव से एक बस निकलती है to the nearest town, जो पास के शहर तक जाती है। When she watched the passenger, और जब वह वो पैसेंजरों को देखती है, यात्रियों को देखती है, she felt great joy, उसे बड़ी खुशी होती है। A feeling developed in her mind, और उसके मन में भी विचार आता है to ride in the bus, कि वो भी बस में राइड करे, बस में सवारी करे। कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट बस जर्नी, और वह बस की यात्रा के लिए सारी जानकारी एकत्रित करती है। वाली's feeling to ride the bus became stronger, और वाली की बस में यात्रा करने की जो इच्छा है वो और मजबूत होती जाती है डे बाय डे, दिन पर दिन। नाउ शी स्टार्टेड टू कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन, और अब वो कुछ जानकारियां एकत्रित करने लगती है अबाउट बस जर्नी, कि कैसे बस में यात्रा की जाती है। सच एज डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक, फेयर, कितना किराया है, एंड टाइम टू कवर इट, और कितना समय लगता है इस पूरी यात्रा को कवर करने में। शी हर्ड द पैसेंजर्स टॉकिंग, वो पैसेंजर्स की बातों को, यात्रियों की बातों को सुनती है। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, शी वुड आस्क देम अबाउट देयर जर्नी, वह उनसे उनकी यात्रा के बारे में भी पूछती है। वन आफ्टरनून वाली एंटर्ड द बस, और एक दोपहरी वाली बस में चढ़ जाती है। इट वॉज अ फाइन स्प्रिंग आफ्टरनून, स्प्रिंग की आफ्टरनून था, दोपहरी थी। एंड व्हेन वाली डिसाइडेड टू बोर्ड द बस, जब वाली डिसाइड करती है कि वह भी बस में यात्रा करेगी। द कंडक्टर वाज अ जॉली फेलो, और जो कंडक्टर है वह काफी एक मजाकिया इंसान है। ही कॉल्ड वाली फाइन मैडम, और वो वाली को फाइन मैडम कहता है। एट दैट टाइम, और उसी समय, देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर इन द बस, बस के अंदर 6 या 7 यात्री ही मौजूद थे। ऑल द पैसेंजर्स वर लुकिंग एट हर, सारे यात्री उसी को देख रहे थे। द बस वॉज न्यू एंड इट्स सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो बस थी वो नई थी, और उसकी सारी सीट्स सॉफ्ट थी, नरम थी, और काफी आरामदायक थी। जर्नी एंड हर क्यूरियोसिटी, वो यात्रा करती है और उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। हर जर्नी टू द टाउन स्टार्टेड, उसकी शहर की यात्रा शुरू हो जाती है। नाउ शी वॉज एंजॉयिंग, और वह अपनी इस यात्रा को काफी एंजॉय करती है। एवरीथिंग, जो भी उसकी यात्रा में आता है। शी वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश थी। एंड द बस वॉज मूविंग थ्रू अ नैरो रोड, और बस एक पतली सी सड़क से आगे बढ़ रही थी। ऑन इट्स वन साइड देयर वॉज अ कैनाल, उसकी दूसरी तरफ कैनाल मौजूद था, एक नहर थी। एंड बियॉन्ड द कैनाल देयर वर वाइड ग्रासलैंड, और उस कैनाल के दूसरी तरफ बहुत दूर तक ग्रासलैंड, घास के मैदान मौजूद थे। ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे मैदान मौजूद थे। एंड माउंटेन्स, और पहाड़ मौजूद थे। ऑन द अदर साइड, और दूसरी तरफ, वॉज अ डीप डिच, गहरी खाई थी। एंड ग्रीन फील्ड्स, और हरे मैदान मौजूद थे। शी स्टूड अप टू सी द साइड, और वह अक्सर खड़ी हो जाती है ताकि इन सब दृश्यों को देख सके। एन ओल्ड मैन आस्क हर टू सिट डाउन, वह बैठ जाए। कॉलिंग हर अ चाइल्ड, और वह उसे बच्ची बोलती है। एट दिस, इस पर, शी गॉट एंग्री, उसे गुस्सा आ जाता है। एंड रिप्लाइड दैट शी वॉज नॉट अ चाइल्ड, और जवाब देती है कि वो एक बच्ची नहीं है। एंड शी हैड पेड फुल फेयर लाइक अदर्स, उसने भी पूरा टिकट लिया है दूसरों की तरह। द कंडक्टर एंड हिज एडवाइस फॉर वाली, कंडक्टर वाली को एडवाइस कर, भाई आप सुबह से नॉन स्टॉप वर्क कर रहे हो, टेक अ ब्रेक। आई वुड लव टू यार, लेकिन जो मेरी 10 मिनट बाद मीटिंग है वो तू अटेंड करेगा क्या? अरे भाई, आपने एक काम करो, आपने एक गेम खेलो, और ट्रस्ट मी, आपने अपनी मीटिंग से पहले रिलैक्स फील करोगे। अरे भाई लो, खेलो तो सही। हाँ यार, दिस इज फन। करता है। The conductor told the old man
कंडक्टर उस ओल्ड मैन को बोलता है दैट वाली वाज ग्रोन अप, कि वो अब बड़ी हो गई है, मैडम, वो मैडम है, एंड नॉट अ चाइल्ड, वो बच्ची नहीं है। एट दिस, और इस पर वाली लुक टुवर्ड्स द कंडक्टर, वो कंडक्टर की तरफ देखने लगती है एंग्रीली, गुस्से से, एंड डिमांड फॉर द टिकट, और उससे टिकट के लिए कहती है। शी टोल्ड हिम दैट शी वाज नॉट अ मैडम, और वो उसे बताती है कि वे मैडम नहीं है। द कंडक्टर गेव हर अ टिकट, कंडक्टर उसे टिकट देता है। आफ्टर दिस, और इसके बाद, ही एडवाइज हर टू सिट डाउन कंफर्टेबली, और वो उसे एडवाइस करता है कि वो अच्छी तरीके से बैठ जाए, लेस्ट शी शुड फॉल, अदरवाइज वो गिर जाएगी, एंड हर्ट ऑन शार्प टर्न्स, क्योंकि जब तीखे मोड़ आएंगे तो उसे चोट भी लग सकती है। शी टोल्ड हिम दैट शी वाज 8 year old, और वे बोलती है कि वो 8 साल की है। An old woman entered the bus, तभी एक बूढ़ी औरत बस में आती है। At the next stand, अगले स्टैंड पर, an old woman entered the bus, एक बूढ़ी औरत बस के अंदर आती है, and sat beside वाली, और वाली के साथ बैठ जाती है। She was chewing betel, वह पान चबा रही थी, nuts, and had ugly earrings, और बहुत बुरे से earrings पहनी थी। She asked वाली if she was alone, वह वाली से पूछती है कि वो अकेली है। वाली replied, वाली जवाब देती है that she was alone and had got a ticket, कि वो अकेली है और उसके पास टिकट भी है। The conductor repeated his statement, कंडक्टर उसकी बात को रिपीट करता है। वाली हंसने लगती है, and ask why he didn't mind his own business, कि वो अपने काम पर क्यों नहीं ध्यान देता। The old woman told, बूढ़ी औरत उसे बोलती है that it was not right for her to travel alone, कि उसके लिए अकेले यात्रा करना ठीक नहीं है। And ask about her house, और उससे उसके घर के बारे में पूछती है। At this, इस पर वाली replied, वाली जवाब देती है that she needn't worry about her, कि उसे इस बात की कोई चिंता नहीं है। Her plan for the journey, उसने जर्नी के लिए, अपनी यात्रा के लिए प्लान बनाया था। वाली had planned very well, उसने बहुत अच्छे से प्लान बनाया था फॉर हर फर्स्ट जर्नी, अपनी इस पहली यात्रा के लिए। शी हैड सेव्ड 60 पैसे, उसने 60 पैसे बचाए थे फॉर दिस जर्नी, इस यात्रा के लिए। शी हैड रेसिस्टेड हर डिजायर फॉर टॉयज, उसकी जितनी भी जिज्ञासा थी खिलौनों के लिए, एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीजों के लिए। शी डिड नॉट राइड अ मैरी गो राउंड टू सेव कॉइन्स, उसने यहाँ तक कि मैरी गो राउंड पर भी नहीं गई ताकि वो पैसे बचा सके। नाउ शी चूज द आफ्टरनून, और अपने इसने उस दोपहरी को सिलेक्ट किया, टाइम टू राइड अ बस, ताकि वो बस में यात्रा कर सके। व्हेन हर मदर स्लेप्ट, जब उसकी माँ सो चुकी होगी, आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के बाद। एन इंसिडेंट ऑफ काउ, तभी एक गाय की घटना घटती है। द बस वॉज मूविंग स्मूथली, बस अच्छे से चल रही है। द ट्रीज लुक लाइक रनिंग, पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वह तेजी से भाग रहे हों। Sometimes it appeared that the bus would strike, कई बार ऐसा लगता जैसे बस टकरा जाएगी with an oncoming vehicle, आगे आने वाली गाड़ी से। But both passed by safely, लेकिन दोनों सेफली गुजर जाते हैं। Suddenly a cow came in front of the bus, अचानक एक गाय बस के सामने आ जाती है। The driver stopped the bus, ड्राइवर बस को रोक देता है and sounded the horn, और हॉर्न बजाता है। But the cow continued galloping in front of the bus, लेकिन गाय लगातार बस के सामने कूदती रहती है। She clapped with joy and laughed, वाली ताली बजाने लगती है और हंसने लगती है। After this the cow moved off the road, इसके बाद गाय रोड पे से अलग हो जाती है। The bus again started, और बस फिर से आगे चल पड़ती है। Conversations between the conductor and वाली, कंडक्टर और वाली के बीच में बातचीत होती है। आफ्टर पासिंग थ्रू अ रेलवे क्रॉसिंग, जब रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर लिया जाता है, द बस रीच द टाउन, बस शहर पहुंच जाती है। एट द क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग पर, द ट्रेन वॉज लुकिंग लाइक अ स्पेक फ्रॉम द डिस्टेंस, रेलगाड़ी दूर से एक डिब्बे की भांति दिख रही थी। द पैसेंजर्स गॉट डाउन, सारे पैसेंजर्स नीचे उतर जाते हैं। बट वाली रिमेन्ड इन द बस, लेकिन वाली बस में ही बैठी रहती है। द कंडक्टर आस्क्ड हर द रीजन, कंडक्टर उसे रीजन पूछता है। वाली रिप्लाइड हिम, वाली जवाब देती है दैट शी लाइक हैविंग मोर बस राइड, कि उसे अभी और ज्यादा बस में घूमना है। एंड शी वुड रिटर्न ऑन दिस सेम बस, और इसी बस में वो वापस जाएगी। She demanded the return ticket, और वह उससे रिटर्न टिकट भी मांगती है। The conductor offered her cool drink,
कंडक्टर उसे कोल्ड ड्रिंक भी देता है बट शी रिफ्यूज, लेकिन वो उसे मना कर देती है. हर रिटर्न जर्नी एंड द डेड काउ. द बस अगेन स्टार्टेड फॉर द विलेज. बस दोबारा गांव की तरफ चल पड़ती है. वाली सॉ द सेम साइड. उसे सभी वह दृश्य दोबारा दिखाई देते हैं. फॉर ऑफ द विलेज, गांव की तरफ जाते समय. वाली सॉ द सेम साइट एंड एंजॉयड. और वह काफी एंजॉय करती है. सडनली शी सॉ द सेम काउ. तभी उसे वही गाय नजर आती है. लाइंग डेड ऑन द रोड. जो रोड के ऊपर मरी पड़ी भी होती है. सम फास्ट मूविंग व्हीकल हैड स्ट्रक इट. किसी तेज आती हुई गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी थी. वाली बिकम वेरी सैड. वाली बहुत ज्यादा उदास हो जाती है एट इट. इस दृश्य को देखने के बाद. Wali's destination. Now Wali did not want to see outside. अब वाली बाहर देखना नहीं चाहती. She was hurt at the cow's death. क्योंकि उसी गाय की मौत से बड़ा दुख होता है. Now her destination कब? अब उसकी जो डेस्टिनेशन था, जो गंतव्य था, वो पहुंच गया था. The bus reached her village. बस गांव पहुंच जाती है. And she got down and told the conductor to see again. और वो नीचे उतरती है और उससे दोबारा मिलने के लिए कहती है कंडक्टर से. The conductor smiled. कंडक्टर मुस्कुराता है. And told her to come whenever she felt like riding the bus. और वह उससे कहता है वह कभी भी आ सकती है जब भी वह बस में घूमना चाहे. वाली हंसने लगती है. And went towards her home. और अपने घर की तरफ चली जाती है. Then she found her mother talking to her neighborhood. और फिर वो देखती है कि उसकी माँ अपने पड़ोसी से बात कर रही है, जो उसकी पड़ोस की आंटी हैं. Her mother asked her where she had gone. और उसकी माँ उससे पूछती है कि वे कहाँ गई थी. But वाली didn't reply. लेकिन वाली कोई जवाब नहीं देती है. And just smile. सिर्फ मुस्कुराती है. वाली's aunt told her. और वाली की आंटी उसे बताती हैं that she behaved as if she was a grown up lady. कि ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करती है जैसे ये बहुत बड़ी हो चुकी है. This was the summary of the chapter. Madam Rice the bus है and told her to come whenever she felt like